Give a woman $1 and she can put it to good. Teach her about how really money works and she can change the world. For giving us the correct path of how and when to invest the money, today we have with us the eminent personality, Mr. Amit Vig, who is very hardworking, a great motivator, and a resourceful person. Mr. Amit is an alumni of ISB Hyderabad, from where he has done his MBA in finance. So welcome to you, sir. Shall we start? Sure. Hi, Rita. Good evening. Always a pleasure to connect with you. And I must congratulate you for taking this initiative, which speaks about the actual liberty of a woman. Because I think if financial liberty is there in a woman, then a freedom, a sense of pride in a woman will always prevail. I think though it looks like a very high-tech thing to understand, investing in women, the habits, but Yes. trust me, it is very, very easy and very effective. You Yes, can please that go ahead. only we are here to get the tips from you, like how to do it in a very correct manner. So without wasting the time, as I know you're a very busy person, let's start with my first question. That what is the right age for a woman to start investing? Every age is the right age to start, because the more important thing about starting the investment is first the conviction and the confidence a woman should carry. See, in India, the society is very different, Rita. People in India, they grow in shadows of a father and then a husband, that investment decisions lie with the male. But it is not Yes. so. People have changed, things have changed. And now I think every age, when this sense, when this knowledge prevails, is the right age. Obviously, the most important aspect in investing is the better you start sooner, you will last longer. That is always there. But it depends when you are going to take the initiative. But I think women in today's time, I meet a lot of people in IIM Ahmedabad, Calcutta, ISB. I have seen students at the age of 20, 25 starting investing, because they know that they have got 40, 50 years to invest and make money. So I think ऐसा कुछ नहीं है कि कब शुरू करो आप, जब जब जागो तभी सवेरा. अगर आप आज जाग गए हो तो आज से इन्वेस्टिंग शुरू करो, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म गोल, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म. Yes, of course, I agree to that. I agree to start that. sooner. Start sooner. As soon as you get your pocket money or whatsoever, you can invest it onto the right path. Isn't it? Absolutely. See, I'll give you an example. And this is a very relatable example to all of us, because we all are parents. Now, my daughter is going to be 18. She's 17. Yeah. And she has already started investing money in stocks. Can you believe it? So whenever I give her a pocket money, she says, आप मेरे को 50% pocket money दे दो, बाकी मेरे लिए ITC के stocks खरीद लो. So Oh, that is the great. sense of today's generation. She's 17. So that is what I'm saying, that you should start sooner. That is one thing. And you should always have this capability to understand and the efficiency to prevail कि मुझे जिंदगी भर इसको invest करना. So that is what is important. Okay. These are logical and rational decisions, and one should take as soon as possible. Even if you start today, it is not late. Trust me, it is not late. Okay. So can you just give us, my next question is, give us some tips that how money is important for a woman to survive. See, first of all, this is a good question, Rita. I'll divide my answer into two parts. First of all, it is about life safety, and then saving and growth. So you have to be sure that you want to be safe in life. If you see today, medical costs in India are rising at about 25 to 30% every year. For example, you go to a hospital today, you get admitted there. जो आज की कॉस्ट होगी, जो अगले साल की कॉस्ट होगी, उसमें 25 से 30% का डिफरेंस होगा. So my first request to all the ladies who going to hear this session is, first of all, get yourself insured. Life insurance and medical insurance. These are two very important things in India which people don't understand, because सबको लगता है हम बीमार नहीं होंगे, कोई और होंगे. Thanks to COVID, people have started understanding that हम भी बीमार हो सकते हैं और बुरी तरह से बीमार हो सकते हैं. Exactly. And I must tell you that in COVID, per patient cost came to about 5 to 6 lakh rupees. So अगर आपने अपनी cost plan नहीं करी है, medical insurance, life insurance,
तो आपकी जो सेविंग्स है, आपने सपोज 10 लाख रुपए सेव किया, अब आप बीमार हो गए, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आप हॉस्पिटल में गए, वहां का बिल आ गया 5 लाख। तो जो आपने 10 लाख बहुत मेहनत बस करके सेव। अच्छी कमाई हार्ड वर्क करके कमाए थे, उसका 50% तो सिर्फ बीमारी में निकल गया। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द फीमेल्स इज दैट योर लाइफ is more important than a man's life, because you manage so many things. Kids need you more than a father, right? Household Exactly. works keeps you busy, your enterprising skills keeps you busy, your entrepreneurship keeps you busy. So your life is very precious. Please don't put anyone else's life important than yours. So first, take a good medical insurance, take a good life insurance cover, and then talk about saving and growth. So this was my first answer. Now coming to saving, again, this has got two parts. Do you want to save your money or do you want to grow your money? If you want to save your money, go ahead and keep your money in bank, which Okay. which 99.9% people do. Everybody do that. बैंक की एफडी Yes. है ना, बैंक की एफडी। बैंक की एफडी का क्या लॉजिक है कि आपका पैसा सेफ है, लेकिन आपका पैसा ग्रो बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ग्रो? आई विल एक्सप्लेन यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। I'm sorry. एफडी के रेट, I'm sorry. I'm just interrupting you in between. But you know, people have this concept in their minds that FDs give them more rate of interest. Even I have that concept in my mind. So we should go for FDs, and there are certain other government schemes also that have come. So what do you just first explain me that what is the difference between that? इस सेशन के बाद हम आपका ये इंटरेस्ट ऑफ एफडीज बिल्कुल चेंज कर देंगे, इसलिए तो ये सेशन कर रहे हैं। तो आई गिव एन एग्जांपल, बैंक की एफडी 6% का इंटरेस्ट देती है, राइट? मानते हैं आप ये बात? अब बैंक में जाइए, 1 लाख की एफडी कराइए, वो बोलेंगे मैम इसकी मेच्योरिटी विल बी 6%, 1,06,000 आपको मिल जाएगा। इंडिया की इन्फ्लेशन कितनी है सब में? 6.44%। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महंगाई दर कहते हैं, और इन्फ्लेशन कॉस्ट कहते हैं, इन्फ्लेशन राइज कहते हैं। जो पेट्रोल 70 रुपए का होता था वो आज 100 रुपए का हो गया है, जो दाल 61 की होती थी वो आज 85 की हो गई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझने की कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी है। महंगाई बढ़ रही है 6%, बैंक की एफडी भी 6% दे रही है आपको। सो बेसिकली आपने तो कुछ नहीं कमाया, तो जो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया वो महंगाई ने उस साल कवर कर दिया। अगर आप इंडिया की इन्फ्लेशन स्टोरी देखो, पिछले 10 सालों से महंगाई हैज बीन 6 to 8%। व्हेन आई से 8%, आपने लाख रुपए बैंक की एफडी कराई, 8% आपकी महंगाई थी, तो वो बन गया 98। सो बेसिकली आपने एफडी में कमाया नहीं, आपने 2 रुपए और खराब कर दिए। ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, इफ यू वांट टू सेव योर मनी, कीप इन द बैंक। कि मेरी कोई चोर, कोई डाकू, कोई थीव, कोई लुटेरा मेरे पैसे को नहीं लुटेगा, मैं बैंक के अंदर मैंने पैसा पार्क कर दिया, तो बहुत अच्छी चीज है। बट इफ यू वांट टू ग्रो योर मनी, दिस इज अ क्राइम। आई एम यूजिंग द वर्ड क्राइम। इट इज क्रिमिनल टू डू अ बैंक एफडी if you don't want to grow your money, because whatever the growth in your FD will happen, that will be eaten away, that will be wiped away by a demon known as inflation. So that is the difference. So if you want to grow your money, there are many other things which you can do, and if you want to save your money, then be happy in FD. But same, I want to make a point here also. See, for rainy days, FD is also important. Suppose a female is working and earning say 50,000 a month, right? So she is making around 5,20,000, 5.5 lakh के आसपास she is making in a year. Now, if her job goes away, what will she do? So either she will bank upon her husband and she'll bank upon her father. सब ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो रेनी डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड रूल ऑफ फाइनेंस सेज कि आपके पास 3 से 6 महीने जो आपके घर का खर्चा है, 3 से 6 महीने का घर का खर्चा आपके पास हमेशा लिक्विड कैश में अवेलेबल होना चाहिए। लिक्विड कैश का क्या मतलब होता है कि आप बैंक में गए, आपने अपनी एफडी तोड़वाई, आपने पैसे निकाले, घर आ गए। सो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस रूल 3 to 6 मंथ्स की एफडी का पैसा आपके पास बैंक में होना चाहिए। बट इसके अलावा आपको एफडी में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, बिकॉज वो आपको ग्रोथ नहीं देगा। तो अगर आपके घर का खर्चा सपोज 20,000 रुपए है, तो आपके पास अराउंड 1,20,000, 2 लाख के आसपास लिक्विड कैश होना चाहिए।
5 लाख में से जो आपने कमाए हैं, और जो 3 लाख है आप उनको अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो और वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे. That is how you have to plan your investing. Can you tell few instruments, as in you told right now that invest in a proper instrument? Can you just give an example of one or two? Like, of course, because now we have come out of that FD zone. So everybody must be thinking that what we need to invest in then. Of course, if not FD, then what? So can you give Absolutely. Absolutely. See, I'll take you to a flashback when our parents used to invest. They used to invest only in two things. एक वो LIC की पॉलिसी ले लेते थे जो 20-25 साल चलती थी, राइट? मेरी अभी 3-4 साल पहले बंद हुई है, वो तब लंबी चलती रहती, उसमें कुछ नहीं मिलता. सेकेंडली बैंक की एफडी कराते थे. लेकिन जब वो बैंक की एफडी कराते थे, मुझे याद है मैंने अपने बचपन में कसौली में 13-14% इंटरेस्ट देखा है बैंक की एफडी में. 13-14% वो टाइम एफडी का था, बिकॉज उसके अलावा और कुछ भी नहीं था. लेकिन अब इतने सारे एवेन्यूज हैं आपके पास कि एफडी इज द लास्ट रिजॉर्ट. कोई मुझे आके बोलता है ना मैंने एफडी कराई है, तो मुझे मैं उसको ऐसे देखता हूँ, वो समझ आता है कि मैं इसको क्या क्या बोलना चाहता हूँ. सो अब आज के दिन में mutual funds are one of the most important aspects and avenues of investing money and saving your money and then growing your money. So एक प्रोसेस है, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करा, वो आपके हिसाब से अब सेव हो रहा है और देन वो ग्रो हो रहा है. और दूसरी चीज होती है इक्विटी मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स. ये दो ऐसी चीजें हैं रीटा जहां पे आज की वुमेन को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड इफ शी इज नॉट इन्वेस्टिंग, then she is missing the bus, because Indian economy is at a boom. अगले 20-30 साल इंडिया के बेस्ट होने वाले हैं. जो किसी जमाने में हम बोलते थे सोनी की चिड़िया, वो सोनी की चिड़िया का टाइम आ चुका है इंडिया का. अगले 30 years are going to be very good. So females should do what? They should invest in mutual funds and then later in stocks. और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करने का एक डिसिप्लिन होता है जिसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहते हैं. जैसे आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन है, आप सुबह इतने बजे उठते हो, स्कूल जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, वापस आते हो, घर का काम देखते हो, वैसे इन्वेस्टिंग भी एक डिसिप्लिन है. तो आपको हर महीने एटलीस्ट 25-30% ऑफ योर इनकम इन अ मंथ यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू सिप्स. नाउ व्हाट इज सिप्स? सिप्स इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो ये क्या करते हैं, आप 500 रुपए से अपनी सिप शुरू कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड की. इंडिया में 1600-1700 म्यूचुअल फंड है. आप उसमें से अच्छे रिसर्च करके 5 to 10 म्यूचुअल फंड्स चुन लीजिए और अपनी सिप्स शुरू कीजिए और सिस्टमेटिकली उनको लगाइए हर महीने. तो आप अपने बैंक के पास गए, आपने उनको बोला कि मुझे तो एफडी नहीं करनी, वो बहुत परेशान हो जाएंगे. तो उसके बाद आप बोलो कि मुझे म्यूचुअल फंड्स करने हैं, तो उनको समझ आ जाएगी आप तो बहुत एजुकेटेड इन्वेस्टर हो, आपको डिफरेंस पता है एफडी का और म्यूचुअल फंड का. तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोल देंगे. तो आपको बोलेंगे मैम आप बता दीजिए कौन से म्यूचुअल फंड आपको चाहिए. तो आप अपनी एक इंस्टॉलमेंट लगा दोगे. जैसे ईएमआई की इंस्टॉलमेंट होती है, वैसे म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट होती है. उस इंस्टॉलमेंट को हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं. तो आप उसमें 5,000 रुपए लगा दीजिए, 10,000 रुपए लगा दीजिए, जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप लगा दीजिए और आप 3-4 अच्छे म्यूचुअल फंड ले लीजिए. तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से खुद ईसीएस पे, राइट, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सिस्टम है इंडिया में, उससे आपके 5, 10, 20,000 जो भी है वो माइनस होते जाएंगे. और एक म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है जो बॉम्बे में बैठता है, दिल्ली में बैठता है, कहीं भी बैठता है, वो आपके पैसे को मैनेज करता है. और वो आप अगले 5 साल 10 साल, मिनिमम 5 साल की सिप आप लगाइए, मैक्सिमम आप 30 साल 40 साल की लगाइए. परपेचुअल लगाइए. परपेचुअल का मतलब होता है जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा पैसा कटता जाएगा. आप यकीन मानेंगी, अगर आप 15,000 रुपए की सिप, मैं बहुत आपको थंब रूल दे रहा हूं फॉर ऑल द फीमेल्स, आप 15,000 की सिप लगाती हैं हर महीने फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है, यू विल हैव अराउंड 1.5 to 2 crore आफ्टर 15 ईयर्स. जस्ट इमेजिन, हमारे टाइम में ये सब नहीं था, वरना आज हम सब करोड़पति होते हैं. तो करोड़पति नहीं बन पाए तो करोड़ पत्नियां तो बनो कम से कम. You know, you have the liberty to choose your own life the way you want to live. If 20 years, 15 years you're investing and you make around 2 crores of rupees through a systematic disciplined finance investment, that's the best thing to happen. तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आई वुड से हर फीमेल को सिप से काम शुरू करना चाहिए. अच्छे म्यूचुअल फंड्स की सिप लगानी चाहिए एंड दे शुड जस्ट सिट बैक, रिलैक्स. It will be, they will have golden years
with lots of money coming there. हम ये चीजें करते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं. Okay. So it's a very, very good tip for women to stop going for FDs and investing in the mutual funds. Thank you so much. Trust me, I'm going to go for that now. you should, because Yeah, I'm of telling you, course. in next 15, 20 years, 30 years belong to India. हमारा GDP बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, हमारी GST कलेक्शन बहुत अच्छे से आ रही है, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं. चाइना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स का जो बेनिफिट है उसको चाइना +1 कहते हैं, वो इंडिया में आना वाला है. इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडिया की CPI बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, हमारी IIP का ग्रोथ रेट वन ऑफ द बेस्ट इन दी वर्ल्ड है. सो मुझे Okay. कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखती कि ये टाइम है जब एक्चुअली में आप सब करोड़पति बन सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद. और अगर म्यूचुअल फंड में आपको नहीं लगाने, आप और ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप और किताबें पढ़ते हो, आप बहुत ज्यादा अवेयर हो, जो कि आज की वुमेन दे आर, देन आप सीधे स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदिए. आप वो स्टॉक खरीद के रख लीजिए, उनको 10 साल मत देखिए, अच्छे स्टॉक खरीदिए 10 साल. आपको याद होगा हमारी दादी नानी क्या करती थी, दे यूज्ड टू कीप कलेक्टिंग मनी एंड वो किचन में एक डब्बे के अंदर रखती थी, और Yes. जब वो इमरजेंसी होती थी वो निकालती थी, एंड पीपल यूज्ड टू बी लाइक इतना सारा पैसा है. तो वो कैसे होता था? बिकॉज उन्होंने वो 5-10 साल अच्छे से ग्रो करा है. Grow के. सो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टॉक्स लीजिए अच्छे से, अच्छे अच्छे कंपाउंडर्स लीजिए. कंपाउंडर्स क्या होते हैं रिचा? जो हर साल आपको 15 से 20% की रिटर्न दे. अगर आपके पास 20% की, एज इफ ऑल द लेडीज दे आर गेटिंग अ 20% रिटर्न, देन दे आर क्वीन, एंड इफ दे आर गेटिंग 15% दे आर प्रिंसेस. आप ये सोचिए कि आपको FD में 6% मिल रहा है, अगर आपको कोई 20-15% दे देगा तो इसका मैथमेटिक्स, अगर आप 5-6% की FD पे पैसा रखती हैं तो आपका जो पैसा है वो 12.5 साल में डबल होगा. आप समझिए, आपने आज 1 लाख की FD ली, अब वो 2 लाख कब बनेगा? एट द रेट ऑफ 5%, वो बनेगा 12.5 साल में. लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड्स लिए और आपने स्टॉक्स लिए और वो 15% की ग्रोथ दे रहे हैं, तो जो आपका पैसा है वो 4.5 साल में डबल हो रहा है. सो दैट इज द डिफरेंस. Yes, आपने yes. टाइम स्पैन भी बचाया, आपकी किटी भी ज्यादा हो गई, और आपकी ग्रोथ रेट भी हाई है. सो दिस इज अ विन विन. Okay. Also, please guide us on my next question. That is how the woman can be aware of the basic management of finance. ड्रीम्स अनलिमिटेड _ Amit Vic 12. इससे अच्छी चीज हो सकती है कोई? और एनीवन टू नो व्हाट फाइनेंस इज, व्हाट स्टॉक्स इज? नहीं, आई एम सीरियस. No, See, I today's women, that of course, that is absolutely true. We always follow you for that. But as in, everybody is not on social media, and everybody is not easygoing with YouTubes and all. So are there some books or something of that kind so that anybody can read it and invest accordingly? see, I'll tell you this. I'll tell you about the books also. But first thing is mindset. मैं बहुत frankly आपको ये बता रहा हूँ. Mindset plays a very important role when you want to understand something, when you want to invest. Now the problem in India is, जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो बच्चा घर में देखता है वो ये देखता है कि पापा डिसीजंस ले रहे हैं पैसे के, मुझे तो घर का काम भी करना है, किचन भी देखना है. और जो बेटा होता है वो ऐसे ही ग्रो होता है कि यार पापा डिसीजन ले रहे हैं तो मेरे को तो लाइफ में ये डिसीजन लेने हैं. सो वो ग्रोथ ही बच्चों की ऐसी होती है. तो गर्ल बाय डिफॉल्ट, बाय माइंडसेट, शी इज इन इंडिया, शी ग्रोज अप कि मेरे को घर भी देखना है, मुझे ये भी देखना है. एंड द गाय ग्रोज अप कि मुझे तो फाइनेंशियली भी देखना है, आई एम द मास्टर ऑफ द हाउस, आई एम द मैन ऑफ द हाउस. सो पहले तो इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा दैट फीमेल्स नीड मोर मनी. खर्चे बहुत हैं. आप फ्रैंकली स्पीकिंग देखो, हम तो एक जीन्स एंड टी-शर्ट ही पहनते हैं, आप लोग देखो मतलब कुछ छोड़ते नहीं हो. तो इसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए तो अपने पैसे पे आप लोगे तो यू विल फील वेरी प्राउड. a feeling of self independence. Money gives what? Money gives independence. रीटा, आप मार्केट में जाइए, आपके पर्स में 500 रुपीज पड़े हैं, यू हैव द करेज टू शॉप फॉर 400. आप मार्केट में जाइए, आपके पास 100 रुपीज पड़े हैं, यू विल हैव द करेज ओनली टू शॉप फॉर 80 रुपीज. तो पहले माइंडसेट बदलना इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, देयर आर वेरी गुड बुक्स ऑन मनी. साइकोलॉजी ऑफ मनी is one of the best books
I have read in my life. 0 to 1 is another book. I think all the ladies, all the people should read 2 good books on money. They will understand कि पैसे की ग्रोथ के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, पैसा कैसे वैल्यू ऐड करता है. पैसा बहुत लोगों के पास होता है लेकिन वो ग्रो नहीं होता, वो ऐसे ही रह जाता है. तो अगर आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा तो आपका पैसा आपके लिए वर्क नहीं कर रहा. म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स क्या करते हैं? आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिए, आप ले रहे हो, स्टॉक्स भी खरीद रहे हो, अब आप तो घर में आराम से बैठे हो. आपके लिए कोई फंड मैनेजर दिल्ली या बॉम्बे बैठ के काम कर रहा है और आपके पैसे को ग्रो कर रहा है. आपने 10 लाख लगाए, वो अगले 5 साल में 20 लाख हो गए. आपने कोई मेहनत नहीं करी, आपने सिर्फ 10 लाख लगाए. सो इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, माइंडसेट, discipline, reading, they're very important things. I started my journey by reading Economic Times, to be very honest with you. And Kasauli mein, you know, Economic Times at that time used to come on the second day. वो पहले दिन नहीं आती थी. अगर आज की न्यूज़पेपर है, परसों आती थी. अब मुझे नहीं पता वो कब आती है. नहीं, अब तो आती. तो मैं उस समय परसों के लिए बैठा. It comes now. has grown a lot. I'm sure, with all the due respect, because मेरे को सब कुछ कसौली से मिला. So I'm trying to tell the challenges in discipline. तो मैं उस टाइम में भी सेकंड डे वेट करता था, बीइंग अ किड, कि यार मुझे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़नी है. इकोनॉमिक टाइम्स हर वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इकोनॉमिक टाइम्स से पता चलता है कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं, मैं क्यों लगाऊं, और ये पैसा मेरे लिए कैसे ग्रो करेगा. सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. यूट्यूब पे आप जाइए, आपको बहुत लोग, आप लिखिए फाइनेंशियल ट्यूटोरियल्स, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग. प्रॉब्लम ये है कि वुमेन को मैंने ऑब्जर्व किया है, confidence ही नहीं आता that they can manage their money. That is where they go wrong. Yes. So this confidence backed with conviction is very important. उन्हें लगता है चल यार ये 10,000 रुपए मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, ये ग्रो कर देंगे. भाई आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में क्यों दो जब आपको ड्राइविंग आती है? If you know driving, you will go to St. Mary's Kasauli by your own self. Now, why will you ask someone to drop you? So these things are very important. Okay. Also, please give us some tips, like what are the instruments where a woman can park her money? So, first of all, one is blessed if you have a daughter who is younger than 10 years. So, एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है सुकन्या. बहुत अच्छी स्कीम. तो एक तो सुकन्या में जरूर, अगर आप, वो सिर्फ बेटियों के लिए है और वो उन्हीं बेटियों के लिए जो 10 साल से जिनकी उम्र नीचे है. तो पहले तो आप सुकन्या में जरूर अकाउंट खुलवाओ और वहां पे पैसा इकट्ठा करो. उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स लो, सिप्स लो, और ज्यादा म्यूचुअल फंड्स इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है. 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स बहुत होते हैं आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए. आप 3-4 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप, मिड कैप. आप नॉर्मल लार्ज कैप्स और मिड कैप्स लीजिए, बराबर का पैसा डालिए. सपोज आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 5-5 हजार रुपए उन दोनों में डालिए, एंड लेट योर मनी ग्रो फॉर ईयर्स. उस पैसे को निकालिए मत, तोड़ाइए मत. आपके पास करोड़ों का कॉर्पस हो जाएगा एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम. सेम इज विद सुकन्या. अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम में करना है तो आप सुकन्या लीजिए, पोस्ट ऑफिस में होती है, और वहां पे आप अपना पैसा. सुकन्या इज द ओनली थिंग you said here. I'm sorry, Sukanya is the only thing that I have invested in. Great. Congratulations, you have done a great investment, and I must tell you that you're on the right track. Now you need to invest and park your money in mutual funds, and then have the courage Of course. and the bravery to invest in stocks. अच्छे स्टॉक्स खरीदिए. आप मुझसे पूछ लेना कौन से स्टॉक खरीदने हैं. बट एक वुमेन, I need your guidance. हमें लगता है all the ladies are very fond of gold. I completely respect that because obviously they love it. But gold is not a great investment strategy. Return of gold for last 10 years is about 3 to 4%. Whereas the share market has given a return of 16% every year for last 20 years. So अगर आपने पैसा स्टॉक्स में लगाया है तो 16% हर साल ग्रो कर रहा है, और अगर आपने वही पैसा एफडी में लगाया है 5% ग्रो कर रहा है. So that is the difference. So life is all about choices, Rita. Yes, you make a right choice, you will get lots of money back. Yes, actually you talked about gold, na? So actually that is a mindset of everybody, that gold, the price of the gold is going to increase day by day. So few people, they buy they buy guineas, or they buy some other gold things, and they invest in that.
और उससे two purposes are solved. Our wishes are also fulfilled, and then investment is also there. But now I got to know that what we are also, where we are lacking by investing in gold even. आप गोल्ड लीजिए, देखिए ड्रीम्स और डिजायर से बड़ी कोई चीज नहीं है जिंदगी में। अगर आपको गोल्ड इसलिए लेना है बिकॉज आपका डिजायर है, आपकी ड्रीम है, आप प्लीज लीजिए। बट अगर आपको पैसा ग्रो करना है, आपको पैसे को बहुत डबल करना है, ट्रिपल करना है, 10 टाइम्स करना है, तो म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, स्मॉलेस्ट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन will always help you towards a larger goal, larger dream to be accomplished. आप प्लीज वो माइंडफुल रखिए। गोल्ड लीजिए, लेकिन उतना ही गोल्ड लीजिए जितना आपको जरूरत है। आप आंखें बंद करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, आप मेरी बात मानिए, आई टेक दी ओनस, अगले 10 साल पैसा ना निकालिए और आप देखिए उसके बाद वेयर योर मनी विल रीच। Thank you so much for this, not investing in gold and investing in mutual fund, because even I had the same mindset. Invest in gold, that will be better than FDs, as well as because I haven't never invested in mutual funds, but now of course going to do that. Go to the bank. Go to the bank. The most important criteria for opening a mutual fund account or a stock account where you can buy shares is Demat account. Go to the manager. टेल द मैनेजर कि आप मेरा डीमैट अकाउंट खोलिए। आपका डीमैट अकाउंट 24 घंटे में खुल जाएगा। उसके बाद प्ले इट, कॉन्कर द वर्ल्ड इज वेटिंग टू बी कॉन्कर्ड बाय यू, ट्रस्ट मी। Hope for the best. So thank you so much. And well, I think so by today, by this time, we have gained a lot of knowledge. And of course, we have that time span limit also. I know you are a very busy personality. So thank you so much for giving your valuable time and guiding us to this topic. It was really so resourceful and so knowledgeable, because till now we were investing at a wrong place. I think so. Nobody must, like, if the people I know around, nobody has been investing in the mutual funds till now. So looking forward for more investments, and thank you. We will, I think so, everybody will be benefited by it now. So thank you. It is a pleasure, Rita, and I must congratulate you for all the initiatives you take. And this needs a lot of bravery, a lot of courage to think about such initiatives, because what you are doing through this interaction is not for you, but for the people. So basically, you're plowing back to society, to females. And I think you command a lot of respect for this. So thank you so much for having me here. We'll keep doing such sessions so that we can plow back to society together. Thank you. Of course. Thank you so much. Thank you, Rita. Thanks.